తర్వాత మాడతా బాంబే మీటింగ్ లో ఉన్నాం. బాంబే మీటింగ్ Hi everyone, we'll start shortly. We're waiting for participants to join. So as soon as they do, we'll begin the session. Thank you. Shri Ganeshaya Namah. Happy Navratri, everyone. Good morning. I'm Anshul Bajwa, and I cordially welcome all of you to the CAI Cotton Workshop. This workshop is organized by Cotton Association of India, a 100-year-old apex cotton body in India on the occasion of World Cotton Day. I invite the dynamic CAI President, Mr. Atul S. Ganatra, to deliver his welcome address. Respected Sri Pradeep Kumar Agarwal ji, CMD CCI, Sri T. Rajkumar ji, Chairman City, Sri Suresh Bhai Kotak, Chairman of Kotak Group of Company, and most respected in India cotton industry, Dr. C.D. Mai, a leading cotton scientist and well known for his achievements, President and Secretaries of all 10 cotton growing Indian states, our trade well-known experts, panelists, my colleagues on the CI board, CI members, and my cotton friends. Good morning to you all. On behalf of Cotton Association of India, I cordially welcome you all to this CAI Cotton Workshop, which we have organized on the occasion of World Cotton Day on 7th October 2021. I convey our sincere thanks and gratitude to each one of you for accepting my request and joining this workshop at such a short notice.
World Cotton Day is celebrated on October 7th every year as a global celebration of cotton and its stakeholders. It has launched by the World Trade Organization in 2019. World Cotton Day celebration provides an opportunity to recognize the importance of cotton as a global commodity. World Cotton Day is celebrated with great spirit. In Indian economy, cotton plays an important role. Cotton provides livelihood to about 6 million farmers, with another 40 to 50 million people engaged in related activities in textile value chain. Indian textile spinning industry using 60% of cotton and 40% of man-made fiber. India is #1 cotton producer in the world, with about 30% of the world total acreage. India is providing around 35 to 37 million bales of cotton yearly from last few years. India's cotton consumption is around 33 million bales, and we are second largest consumer of the cotton, next only to China. Also, India is second largest cotton exporter, next only to USA. After introduction of BT seeds, India's yield per hectare from 68 kgs is now improved to 450 kg per hectare. However, our cotton yield still among the lowest in the world. Therefore, we have today invited industries leaders to discuss on this subject in this workshop and chart out the path of India to achieve at least the world average productivity, make for over 700 kgs per hectare. If we succeed to increase our yield even 20% more than today, we can produce 50 million cotton bales yearly. Also, today in this workshop, we have invited India's all 10 cotton growing states, presidents or secretaries to give us their state cotton crop condition as on today and many more other details. When the new cotton season is starting, entire India cotton value chain want to know how the market will behave in coming months. For that, today we have invited India's the best trade experts and trade leaders and international merchants who will give us knowledge in our discussion of bulls and bears panel discussion. Friends, I would like to inform you all that Cotton Association of India will be completing 100 years of its service to the cotton sector in India on 19th October 2021. CI was incorporated on 19th October 1921. Since then, the CI has engaged in providing a wide range of service to the entire cotton value chain. All the segment of the cotton value chain included mill buyers, growers, ginners, brokers, merchants, importers, exporters are the member in CAI. We hope to celebrate our 100th year grand manner. However, due to COVID-19, we have delayed our celebration so that all our members can participate on this occasion. Soon, our event committee will formalize these programs, and I humbly request each one of you to make it convenient to join us in our 100th year celebration. Once again, I thank you everyone for attending today's World Cotton Day with CAI. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra.
Thank you. Thank you, Mr. President, for your ever so insightful address. We now begin the first session of the day, Prospects of New Crop Year 2021-22, Cotton Crop Report from each cotton growing state. Cotton is grown in India in different agroclimatic zones across 10 states. I'm happy to announce that the presidents and secretaries of these 10 cotton growing states are present here to apprise you of the present cotton scenario and growth prospects in the respective states. Mr. Atul Ganatra is the moderator of this session, and to give report of cotton crop from the respective states are Mr. Mukul Desayal, President of Indian Cotton Association Limited, Bathinda, for the states of Punjab, Haryana, and Rajasthan. Mr. Bhupendra Singh Rajpal, Chairman of the Maharashtra Cotton Ginners Association, Aurangabad, for the state of Maharashtra. Mr. Pradeep S. Jain, Chairman of Khandesh Gin Press Kharkandar and Traders Development Association Jalgaon for Khandesh region. Mr. Akash Shah, President of Gujkot Trade Association Ahmedabad for the state of Gujarat. Mr. Arvind Pan, President of Saurashtra Ginners Association, Rajkot for Saurashtra region. Mr. Manjeet Singh Chawla, President of Madhyanchal Cotton Ginners and Traders Association, Khargon for the state of Madhya Pradesh. Mr. B. Ravinder Reddy, President of Telangana Cotton Millers and Traders Welfare Association, Hyderabad for the state of Telangana. Mr. K. Ramarao, Secretary of Andhra Pradesh Cotton Association, Guntur for the state of Andhra Pradesh. Mr. Om Prakash Jain, President of Karnataka Cotton Association, Hubli for the state of Karnataka. Mr. J. Tulsidharan, President of Indian Cotton Federation, Coimbatore for the state of Tamil Nadu. Mr. Arun Agarwal, Secretary of Odisha Cotton Association, Balangir for the state of Odisha. I request Mr. Ganatra and other participants in this session to please initiate the proceedings. Thank you, Anchal. We will now, good morning, friends. We will now start crop report session. First, I will start with Maharashtra. I invite Sri Pappu Bhai, President of Maharashtra Ginner Association, and also he is Vice President of Cotton Association of India. Good morning, Pappu Bhai. Pappu Bhai, please unmute your. Good morning, Pappu Bhai. गुड मॉर्निंग। महाराष्ट्र में इस साल जो कॉटन प्रेसिंग का जो फिगर लग रहा है करीबन 80 लाख के आसपास आना चाहिए, जो कि लास्ट ईयर में भी करीबन 80 लाख था। उसका कारण यह है तो 3 से 5% तक तो इस साल सोइंग कम हुआ है और लगभग 40 लाख हेक्टेयर में सोइंग हुई है कॉटन की। ज्यादा बारिश होने के वजह से जो है 10 से 15% क्रॉप डैमेज खानदेश में हुई है और 5 से 10% डैमेज हुई है मराठवाड़ा में। पर हम लोगों का ऐसा मानना है कि वाटर लेवल अच्छा होने से सेकंड फ्लश से मुकाबले में ज्यादा आएगा तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। जो लास्ट ईयर था करीब करीब वैसे ही रहने की उम्मीद है। और जहां तक क्वालिटी का सवाल है तो क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा इशू रहने सकता है क्योंकि डैमेज हुआ है फर्स्ट पिकिंग का माल। अब ये देखना होगा कि सेकंड पिकिंग का या जो लेट सोइंग आने वाला है तो वो क्वालिटी कैसी आती है। तो क्वालिटी के मामले में मेरे को लगता है कि 2 नवंबर में ही मालूम पड़ जाएगा कि क्वालिटी किस टाइप से आती है। जी पप्पू भाई, आपको क्या लगता है इस साल सीसीआई का महाराष्ट्र में एमएसपी ऑपरेशन कैसा होगा और अगर वो होगा तो कब, कौन से महीने में होगा? इस वक्त जो भाव अभी इस हिसाब से चल रहे हैं, इंटरनेशनल में भी आइस बहुत ऊपर चल रहा है और जिस हिसाब से वर्ल्ड लेवल पे कॉटन की प्राइस चल रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि एमएसपी नहीं आएगी क्योंकि प्राइस में काफी डिफरेंस है। अब डिपेंड करता है कि अगर ये प्रेशर जब आता है दिसंबर जनवरी में इंडिया का, क्योंकि जब एमएसपी में ऑपरेशन नहीं रहेगा तो प्रेशर आएगा प्राइवेट जीनर्स के ऊपर और लागत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 50% कॉटन और सीड का प्राइस ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट काफी लगने वाला है। तो उस टाइम पे जब इंडिया का पिक या महाराष्ट्र का पिक आवक का टाइम रहेगा तो उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि संभाल पाएगा कि जीनर्स नहीं संभाल पाएगा।
अगर आवक का प्रेशर नहीं संभाल पाएगा तो थोड़ा एमएसपी आने के चांस रहेंगे, पर वो नहीं के बराबर रहने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मतलब 15-20 दिन एमएसपी आ सकता है। आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशर जी। रहा तो। जी। और अच्छा पप्पू भाई, और एक आपसे क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर महाराष्ट्र का प्रेसिंग 80 से 82 लाख बेल्स का 170 केजी का हुआ था, हाँ जी, और करीब करीब 15 से 20 लाख गांठ महाराष्ट्र से बाहर गई थी। हाँ। इस साल आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में कितना प्रेसिंग महाराष्ट्र में होगा, और अगर बाजार में मंदी रही और एमएसपी नहीं रही तो कितना ज्यादा कपास महाराष्ट्र से बाहर जा सकता है? क्या आपका क्या उस पे सुझाव है? मेरा वही कहना है, आपको जो अभी बताया कि 80 लाख से 82 लाख के आसपास ही प्रेसिंग होना चाहिए महाराष्ट्र का। और जैसे 12 से 14 लाख गांठ या 10 से 12 लाख गांठ गुजरात और थोड़ा एमपी में जा सकता है। और पर अब डिपेंड वही रहेगा कि प्राइस ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा जो जीनस कितना है उसका ले पाएंगे कि कपास, उसके ऊपर डिपेंड करेगा मोटा मोटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच पप्पू भाई फॉर योर परफेक्ट रिपोर्ट ऑन महाराष्ट्र। ओके। Now I invite Shri Pradeep Jain, Chairman of Khandesh Ginning Association. प्रदीप जी नमस्कार। सभी को नमस्कार मेरा। सर प्रदीप जी, इस साल आपके यहाँ खानदेश का क्रॉप कंडीशन कैसा है, और क्रॉप कैसा रहेगा, क्वालिटी कैसा रहेगा? खानदेश में लगभग 9,25,000 हेक्टेयर कपास लगाई जाती है, और इस साल 9,10,000 हेक्टेयर का कपास का सोइंग हुआ है। और यहाँ की कपास की क्वालिटी अच्छी है। हर साल लगभग 25 लाख गठान का उत्पादन होता है, पर कपास की क्वालिटी अच्छी होने से 10 से 12 लाख गठान यहाँ से गुजरात और एमपी में जाती है। और अभी इस साल बारिश ज़्यादा होने से करीबन 22 लाख गठान उत्पादन होने की उम्मीद है, और खानदेश में 12 लाख गठान प्रेसिंग होने की उम्मीद है। और आज आवक कम है, और 15 अक्टूबर से रेगुलर आवक चालू हो जाएंगी। खानदेश के अंदर जो मेजर क्रॉप का क्वालिटी है वो 29.5 माइक आता है, 3 लेंथ आता है, 3.84 माइक रेगुलर आता है, और ये क्वालिटी अप्रैल तक के अवेलेबल होती है। और खानदेश में लगभग 150 जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रीज, मॉडर्न जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रीज है, और हमने महाकॉट ब्रांड विकसित किया था। इसका हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और हमारे गठान को प्रीमियम भी मिलता है। जी प्रदीप जी। हाँ, और आपको आपका स्टेट के लिए और कुछ कहना है कि? नहीं, पप्पू भैया ने पूरी मालूमात दे दी, बराबर मालूमात थी वो, तो जी। उसमें मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहूँ। जी थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके। Now I will request Shri Om Prakash Jain, President of Karnataka Cotton Association. Actually his number was on 8, but since he is in aircraft now and his flight will take off at 10:40, so I will take him in between. Om Prakash Jain साहब, आप नमस्कार सभी नमस्कार। को। थैंक यू। आप एयरक्राफ्ट से बात कर रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप एयरपोर्ट पे हैं शायद? एयरपोर्ट पे। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाँ जी। कि अभी इस साल कर्नाटक का क्रॉप कैसा रहेगा और क्वालिटी कर्नाटक का कैसा रहेगा? देखिए, कर्नाटक में लगभग 720 हेक्टर पे सोविंग हुआ है, जो अभी गवर्नमेंट का जो डाटा है, और अनऑफिशियल थोड़ा बहुत ज्यादा ही हुआ ऐसा बता रहे हैं, मगर 720 तो ऑफिशियल डाटा, और ऑलमोस्ट ऑल लास्ट ईयर का जितना क्रॉप पक्का आएगा, 24 से 25 लाख गांठ का क्रॉप आ जाएगा। उसका रीजन है, कभी कुछ सोविंग कम हुआ रहेगा तो भी यील्ड अच्छा आने का चांस है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छा आएगा हमारे कर्नाटक में, क्योंकि बारिश बहुत टाइम पे हुआ है। थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ तो उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट ही होगा। अच्छा, इस अभी लास्ट थोड़े दिन में जो रेंज हुआ है उसका क्रॉप को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा ही होगा, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा जी। और अभी आप महाराष्ट्र में हैं, तो आप महाराष्ट्र का आप घूमे हैं बहुत, तो महाराष्ट्र का क्रॉप कैसा है? मैंने महाराष्ट्र में खानदेश एरिया में मेरा ट्रैवल था, लगभग ये नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, अमलनेर, ये एरिया में घूम रहा था मैं, दूसरा कोई बिजनेस काम से।
पर मैंने जो वहाँ की क्रॉप कंडीशन देखी है, जो पेड़ का कंडीशंस वगैरह था, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। और जहां भी मैं गया मेरे को सिर्फ कपास के अलावा कोई बाकी कोई ज्यादा क्रॉप भी नहीं दिखी, जो जी खानदास के एरिया में पर्टिकुलर जी जी। ये जो थैंक यू धुलिया और थैंक यू। थैंक यू आकाश जी। नाउ आई विल इनवाइट मुकुल जी तायल, प्रेसिडेंट ऑफ ICAL. मुकुल जी नमस्कार। Good morning, Atulji. How are you? I am fine. Congratulations, first of all, for getting elected ICAL president. You are welcome. Thank you, sir. मुकुल जी, इस साल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में क्रॉप का सोइंग कैसा रहा और इस साल क्रॉप का क्वालिटी कैसा आएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी? Sir, the sowing in Punjab, Haryana, Rajasthan, including Lower Rajasthan, is about 17 lakh hectares, which is 8 or to 9% down from last year. We have had untimely rains. September has been very wet, and we also got heavy outpours, heavy rains on 4th and 5th of October. These rains are not beneficial for the crop. They will cause damage in quality and quantity both. You need to realize that in North India, the crop gets cut by 15th of December. So unlike Central India, we do not get flushes after flushes. That is why the first flush was very important. We have lost. My expectation is that we should see the crop size of 52 to 53 lakh bales. However, this can change by 10 to 12% depending on the weather in the next 6 to 7 weeks. If the weather remains clear, if we get westerly winds, I would not be surprised if the crop increases by 10 to 12%. Very good. And it can go otherwise if the weather is bad and we get easterly winds. At the moment, we are getting an arrival of about 30,000 bales. It is moisture-laden cotton and unfortunately is rain touch also. मुकुल जी, मेरा आपसे one more question to you. Since CCI was having left out 8 lakh bale stock in north, out of that some around 4 to 5 or 4 to 6 lakh bale has been sold in last 10 days. So people talks about north mills that mills in the north have covered the cotton for December and January month from the CCI. So what is your view on that, sir? My view is that CCI is almost sold out, sir. Yeah. This cotton has not got only sold to North Indian mills, but a lot of this cotton has also found a home in Gujarat mills, which needed cotton very badly. I would say that most of the mills are well covered till November. Some large groups may be also covered December. Okay. But I do not think that there are mills who are covered January. Okay. That is my view, but please understand that because the old cotton has less moisture, sir. Cotton that is coming in so much laden by moisture that the consumer says that at least let me get a less moisture cotton. And also please note that multinationals have been active. So a lot of this material has also found home in MNCs. Yeah. Thank you very much, Mukul ji. Thank you, sir. Now I will invite Sri Akash Bhai Shah, President of Gujkot. Namaskar, Akash Bhai. Thank you. आकाश भाई, लास्ट 4-5 दिन से गुजरात में एकदम अच्छा सनशाइन है और आने वाली क्रॉप के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा गुजरात के सब जीनर्स और ब्रोकर्स बोल रहे हैं। तो अभी गुजरात का क्रॉप का कंडीशन कैसा है और इस साल क्रॉप का क्वालिटी कैसा रहेगा? जो नया सीड लगाया है लोगों ने, उसका क्या कैसा प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, उसके लिए थोड़ा जानकारी दीजिए। सर थोड़ा पीछे जाके अपन देखें तो 2011 से 2020 तक देखे था तो सर मोस्ट ऑफ द डिकेड गुजरात जो हेक्टर्स है
वो 2.6 मिलियन थे एवरेज। पिछले 2 साल से ये जो हेक्टर्स इट हैज कम डाउन टू 2.2 मिलियन टू 2.3 मिलियन ड्यू टू वेरियस रीजंस कि भाई लुक्रेटिव क्रॉप और कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स। तो और 2017-18 में गुजरात का जो पर हेक्टर यील्ड था वो 644 केजी था। नाउ लास्ट ईयर इट हैज कम डाउन टू 500 केजी। तो मेन गुजरात को सबसे बड़ा लॉस ये लग रहा है। तो इस बार भी गुजरात का जो ओवरऑल हेक्टरेज है ना वो ऑलमोस्ट सेम है 22 टू 23 की रेंज में, 23 प्लस माइनस है। ये जो लास्ट रेंज स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर हुई सर, उससे डेफिनेटली डैमेज तो हुआ ही है और स्पेशली क्वालिटी डैमेज बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन अभी पिछले 4-5 साल से वापस थोड़ा ओपन हो रहा है और इफ रेन स्टॉप्स कंप्लीटली तो काफी इंप्रूवमेंट की जगह है क्रॉप साइज में, रादर क्वालिटी में और क्रॉप में, और फर्दर काफी अच्छी आने की उम्मीद है। दूसरा सर, गुजरात का मेन बेनिफिट होएगा कि इस बार जैसे सबने बोला है कि भाई एमएसपी ऑपरेशन आने की उम्मीद बहुत कम है। तो गुजरात का सर जो प्रेसिंग फिगर आता है लास्ट ईयर इट वाज, मतलब जो अभी करंट ईयर अपन ने पूरा किया उसमें 90 लाख बेल्स था। उसमें सर 71 लाख गुजरात का खुद का प्रेसिंग था। 7 लाख बेल्स अंजीन कपास पिछले साल का बचा था और 13 लाख बेल्स जो थे वो गुजरात से बाहर आई थी और 1,50,000 बेल्स लूज कॉटन थी। तो इस बार भी हम सोच रहे हैं कि भाई ये सब इतना अच्छा पीछे से जो बारिश हो से फर्दर आएगा वगैरह, तो गुजरात का जो यील्ड 500 से 525 तक इम्प्रूव हो सकता है इस बार, जो लास्ट ईयर 500 था। तो इससे सर हमारी जो क्रॉप साइज जो है वो 71 वाली गुजरात ओन क्रॉप 75 टू 80 लाख जा सकती है। प्लस महाराष्ट्र आंध्रा से कपास ज्यादा आएगा ड्यू टू नो एमएसपी ऑपरेशन। तो ओवरऑल इट कैन गो टू 95, 96 अप टू 95, 96। तो पिछले साल जो 90 था उससे कुछ ना कुछ बढ़ेगा, 5, 7, 8 लाख प्रेसिंग फिगर बढ़ना चाहिए। और कपास अगर बाहर से आती है तो सर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ही होती है उससे। हाँ, तो दिसंबर जनवरी में क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी सर। जी, आपने सही बोला। हमने काफी गुजरात के जीनर से बात किया, सब जो ब्रोकर लोग से बात किया, तो उनका कहना यही था कि लास्ट ईयर से हमारा क्वालिटी भी इस साल अच्छा आएगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगा। आकाश जी, और एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर एमएसपी नहीं रहा तो आपको लगता है जो ये बाहर से 10-12 लाख गांठ आती है गुजरात में वो इस साल 20 से 30 लाख गांठ तक जा सकता है? क्योंकि गुजरात में जिनिंग का कैपेसिटी अच्छा है, गुजरात में जिनर्स के पास फाइनेंस भी अच्छा है, तो आपका क्या कहना है? डेफिनेटली सर, इट विल क्रॉस 20 सर। गुजरात का अगर क्रॉप 75 होता है तो अपना प्रेसिंग फिगर 95 आएगा। गुजरात का क्रॉप 80 होता है तो वो मतलब 20 प्लस ही आएगा। हाँ, 1 करोड़ होगा। हाँ, थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जी, now I invite Sri Arvind Pan, President of Saurashtra Cotton Association. Arvind bhai, namaskar. Arvind bhai, you are on mute. Please unmute. अरविंद भाई, आपका अनम्यूट करिए। यस। अरविंद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि गुजरात में जो अभी पीछे बारिश हो गया तो उसका कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आप सौराष्ट्र में बैठे हैं जो कपास का हब बोला जाता है, तो इस साल सोइंग सौराष्ट्र में कैसा रहा और ये जो नया बीटी सीड आया है उसका सोइंग कैसा रहेगा, उसका क्वालिटी कैसा रहेगा और आपके यहाँ क्रॉप का कंडीशन और क्वालिटी इस साल कैसा आएगा? तो सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं एक आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि रविवार को हमारी एक मीटिंग था, इसमें मेरा प्रेसिडेंट का सबने जिनर्स लोग ने प्रेसिडेंट बनाया है। कांग्रेचुलेशन। आभार, थैंक यू। आपका जो क्वेश्चन है सौराष्ट्र का, राइट जी, सौराष्ट्र रीजन का। जी, तो ये साल जो पिछले साल जितना सोइंग था उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी कमोतरी नहीं है। जो पिछले साल था 15, 15.5, 16 लाख हेक्टर में, ये साल उतना ही हुआ है।
2% आगे पीछे है, इतना बड़ा एरिया में 2% 5% बोला नहीं जाता। लेकिन ये साल जो लास्ट बारिश हुआ उसमें खराब बदले मीन्स जो बिगाड़ हुआ है वो 15% बोलते सब लोग। और मैं भी समझता हूँ कि जो सर्वे किया गांव में जाके खेत में जाके सर्वे किया तो 15% से ज्यादा नहीं है। सब लोग बोल रहे कि 20%, 25%, 50%, ऐसा कुछ नहीं है, पर 15% है। पर आजकल में जो अभी परसों गए थे, ये जो अभी धूप निकल गया है, तो जो बिगाड़ हुआ था उसमें नया फूट जो बोलते कि भाई ये बगाड़ तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो पानी मिला वो उसको धूप मिलता तो उसको काफी इम्प्रूव हो रहे। तो लास्ट जो लास्ट में फर्दल माल आता वो तो आएगा ही, लेकिन जो अभी ये 4BT है, ओनली 4BT का बिगाड़ हुआ है। वो जो रनिंग कपास जो सोइंग हुआ है इसमें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जरूर उसमें जो फाल है, फाल बोले तो फ्लावरिंग है, वो गिर गया था। लेकिन किसान लोग ये भाव जो 1500-1600 रुपया भी भाव मिल रहे सबको, और वो भी मॉइस्चर वाला माल में 5% 7% मॉइस्चर है, 1500-1600 रुपया मिलता है, समझो कि 1700 रुपये का अभी भाव मिल रहे। तो वो खत डाल के और पेस्टिसाइड डाल के वो उसको इतना मावजत करेगा कि पूछो ही मत, क्योंकि ये इतने सालों में उसकी लाइफ में ये भाव मिला नहीं है। तो अभी किसान लोग काफी लोग मेहनत कर रहे हैं कि भाई 1700 रुपये का भाव मिल रहे हैं, तो ये जो 5 पर एकड़ पे 5 क्विंटल ज्यादा आएगा तो कितना मिल सकता। तो अभी किसान लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, पेस्टिसाइड मार रहे हैं, खत मार रहे हैं, तो कोई इसमें तकलीफ नहीं आएगा। 15% बोल रहे हैं, इसमें 5-7% तो इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और जो चालू 4BT के अलावा जो सोइंग हुआ है उसमें आप क्रॉप इंक्रीज होगा। तो मेरे हिसाब से पिछले साल से 10% प्रेसिंग ज्यादा होगा और बाहर का माल भी काफी आएगा ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि वो यहाँ का जो जिनर्स लोग है और जिनकी कैपेसिटी है काफी है अभी। जी तो आपका कहना है लास्ट ईयर जो गुजरात का क्रॉप 92-93 लाख बेल्स का प्रेसिंग हुआ, उसके सामने कितना ज्यादा होगा अरविंद भाई आपके हिसाब से गुजरात इस साल? पिछले साल जो 8 से 10 लाख गठान पुराना माल की गठान बनी थी वो ये साल नहीं बनेगा, लेकिन 95 से 1 करोड़ का प्रेसिंग हो जाएगा, मेरा मानना ऐसा है गुजरात का। पिछले साल जो अरविंद भाई आपसे और एक क्वेश्चन है कि इस साल जो जिनिंग का उद्योग है वो मेनली कॉस्टिंग कॉटन सीड पे रहेगा, तो आपका कॉटन सीड के ऊपर क्या व्यू है कि कॉटन सीड का मिनिमम रेट क्या होना चाहिए, क्या होगा जब सीजन में प्रेशर आएगा तब? हाँ, कॉटन सीड में ऐसा है कि जो ये सूखा माल हो जाएगा, स्टॉक करने जैसा माल हो जाएगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, तब 20 किलो का भाव 600 से कम नहीं जाएगा जी। तो लोएस्ट 600 रुपीज पर मंथ, 3000 रुपीज पर क्विंटल आपके हिसाब से लगता है। थैंक यू अरविंद भाई, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। Now I will invite Sri Manjit Singh Chawla, President of Madhyanchal Cotton Ginner Trader Association. मंजीत जी नमस्कार। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। और इस कॉटन डे के अवसर पर और आज नवरात्र का प्रथम दिन भी पर्व भी चालू हो रहा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। इस साल आपके यहाँ का एमपी का क्रॉप क्वालिटी और क्वांटिटी कैसा रहेगा मंजीत भाई? मध्य प्रदेश में सर इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले 5-7% ही सोइंग कम हुआ, लेकिन सोइंग काफी ठीक है। फसल का जो सवाल है, अभी सितंबर महीने में जो बारिश हुआ था उसमें जरूर थोड़ा सा 10-1% डैमेज जरूर हुआ है, लेकिन अभी जैसे वेदर क्लियर होते जा रहा है
उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कपास अच्छा आएगा। ग्रेड वाइज भी 75 आरडी के आसपास आ जाएगा। लेंथ भी 29.5 से 30.5 के बीच में करीब ये क्वालिटी आ जाएगा। और साथ में एमपी में लास्ट ईयर करीब 18.5 लाख गठान 170 किलो के हिसाब से प्रोडक्शन हुआ था, और उम्मीद है कि इस साल भी इसके आसपास प्रोडक्शन हो जाएगा। कुछ लॉसेस जरूर हुआ है अभी सितंबर में, बट सितंबर जो कपास के रेट हैं वो बहुत अट्रैक्टिव रेट है। फार्मर्स के हिसाब से करीब 6,500 से 7,500 रुपए अच्छी क्वालिटी के जो रेट चल रहे हैं, आने वाले समय में भी अगर ये रेट रहते हैं तो जो फार्मर नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में कपास को निकाल कर गेहूं या चने पे डाइवर्ट हो जाता है, तो उम्मीद है कि ये रेट अगर रहते हैं तो वो डाइवर्ट नहीं होगा और कपास को ही कंटिन्यू करेगा। तो उससे जो 10% लॉसेस हुआ है वो फर्दल के रूप में या आने वाली फसल के रूप में हम रिकवर कर पाएंगे। साथ में एमपी की क्वालिटी काफी अच्छी आती है। यहाँ के फार्मर एजुकेटेड होने के साथ साथ में बहुत मेहनत से कपास के लिए ध्यान देते हैं। फसल यहाँ पर एमपी का जो निमाड़ पट्टा पूरा है बुरहानपुर टू कुक्षी तक का, इसमें कपास की ही फसल उनकी मुख्य फसल होती है। इसके लिए वो क्वालिटी अच्छी लगाते हैं, अच्छी पैदा करते हैं। हमारे जीनर्स भी प्रयास करते हैं कि प्रोसेसिंग अच्छा करे। हमें यहाँ अगर और प्रीमियम मिलता है तो मैं जीनर्स भाइयों की तरफ से, मेरे एमपी कॉटन के सभी जीनर्स भाइयों की तरफ से भी इंश्योर कर सकता हूं कि हम कंटामिनेशन फ्री कॉटन देने के लिए भी तैयार है, बशर्ते कि हमें उसके सामने उस कॉटन का प्रीमियम मिले। जी। साथ में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अतुल जी, आपके नेतृत्व में भी जो आज कॉटन डे का आपने जो कार्यक्रम रखा है और सभी लोगों को एक मंच आपने दिया है, जिससे कि पूरे स्टेट ग्रोइंग एरिया के जितने कॉटन रिप्रेजेंटेटिव है उनको यहाँ पर अपना बात रखने का, और हमें पूरा हिंदुस्तान का एक नक्शा क्या आएगा आने वाले समय में वो पता चल रहा है, जिससे हमें तेजी मंदी का भी अंदाज रहेगा, क्वालिटी का भी पता चलेगा। और साथ में आप हैं भूपेंद्र सिंह जी राजपाल जी और आपकी पूरी टीम सीआई की ने जो 3 साल से कॉटन प्रोडक्शन के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, वो कॉटन के जो फिगर आप दे रहे हैं जो करीब एक्चुअल फिगर के नियर बाय होता है, जिससे कि जीनर्स स्पिनर्स सबको तेजी मंदी का भी आइडिया लगता है, 2 पैसे कमाने का भी अवसर मिलता है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत पूरी सीआई की टीम को बहुत बहुत आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करेंगे वर्षों में तरह फिगर आप देते रहें, जिससे कि हम एक्चुअल फिगर के पास आने से काफी कुछ अपडेट होते रहें। सर जी, थैंक यू मंजीत सिंह जी, थैंक यू। Now I invite Sri Ravindra Reddy ji, President of Telangana Association. Reddy साहब नमस्कार। सर आपका माइक अनम्यूट करिए रेड्डी साहब। 1 मिनट सर। हाँ हो गया। थैंक यू अतुल भाई जी, नमस्ते। और सीएमडी प्रदीप अग्रवाल जी को, पप्पू जी को, सबको नमस्कार। तेलंगाना नमस्ते। हमारा सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर तेलंगाना का क्वालिटी और क्वांटिटी जो अक्टूबर 15 तारीख को जो बारिश आया था उससे खराब हो गया, मगर इस साल आपको क्या लगता है आपका कॉटन का क्वालिटी और क्वांटिटी क्रॉप कैसा आएगा रविंद्र जी? पहले सितंबर में थोड़ा पहले वीक में बारिश था, वो थोड़ा नुकसान हुआ। अभी क्लाइमेट अच्छा है 10-15 दिन से, अभी क्वालिटी भी अच्छा आने का उम्मीद है। लास्ट ईयर तो पिंक बॉल ज्यादा आ गया है, उसके वास्ते क्वालिटी डिफेक्ट और बारिश गिरने में दो फैक्टर्स में क्वालिटी डिफेक्ट आया। अभी क्लाइमेट अच्छा है और धूप भी अच्छा है, प्लांट भी ज्यादा डेप्थ नहीं है, मीडियम साइज में है। अच्छा ग्रोथ आने का है, बारिश अच्छा गिरा ना, उसके लिए लास्ट ईयर से 13% हमारा सोइंग कम हुआ। मगर देखना आगे सीजन में थोड़ा पिंक बॉल आया तो क्रॉप थोड़ा कम, लास्ट ईयर से थोड़ा कम आने का है। पिंक बॉल नहीं है तो भी क्या है, ये रेट अभी 7,100 है ना, ये नवंबर दिसंबर के बाद प्लांट निकलने का फार्मर्स रहता। अभी मेज का रेट नहीं है, पैडी का भी हमारा तेलंगाना में पैडी ज्यादा था, वो भी अब नेक्स्ट क्रॉप को जाने का नहीं रहता। इसके लिए ये रेट से वो प्लांट को रखे तो भी 2 to 3% इम्प्रूव होने का चांसेस रहता।
मेरे ख्याल से हमारा तेलंगाना का लास्ट ईयर जैसा 45 आया, वो तक आने का रहता। बारिश और पिंक बॉल नहीं है तो भी कंपलसरी 45 तो आता। 45 के क्रॉप अच्छा है तो भी 45 के ऊपर भी आने का उम्मीद रहता। क्वालिटी यही है, अच्छा क्वालिटी मिलेगा। क्वालिटी 30 प्लस कॉटन मिलेगा। भाव भी मेरे ख्याल से एमएसपी प्राइस भी नया था। कहीं को बोले तो कभी भी एमएसपी के अंदर थोड़ा रेट आया तो फार्मर ये रेट देखने के बाद नहीं बेचता, प्रेशर नहीं आता, थोड़ा रुक के बेचता। उसके लिए एमएसपी आने का चांस नहीं रहता। कंटिन्यू ये प्राइवेट को देने का फार्मर्स रहता। मेरे ख्याल से तेलंगाना में अच्छा क्रॉप रहेगा। थैंक यू। ठीक है रेड्डी साहब, और सबका एक क्वेश्चन है। सब मेरे को ईमेल बहुत आया है कि रेड्डी साहब को पूछो कि लास्ट 2 साल से आपके यहाँ 90% सीसीआई ने फैक्ट्रीज चलाया है। 2 साल से एमएसपी चल रहा है कंटिन्यूस, जो बहुत कम होता है, पर इस साल हुआ है। सो आपको क्या लगता है इस साल प्राइवेट फैक्ट्रीज वाले चलाएंगे या ये सीसीआई को फैक्ट्रीज दे देंगे? नहीं, एमएसपी प्राइस बिलो है ना। लास्ट 2 इयर्स का एमएसपी प्राइस का बिलो 200 से 300 नीचे था। उसके लिए सीसीआई को सब दे दिया। अभी ऊपर है तो कोई भी देने का नहीं रहता, सीसीआई को देने का नहीं रहता। एमएसपी प्राइस 6000 के ऊपर है तो कोई भी देने का नहीं रहता, प्राइवेट वाले चलता। हमारा कैपेसिटी भी 50 लाख का कैपेसिटी था। हमारा जिन्नर्स का कैपेसिटी, टोटल जिनिंग कैपेसिटी 1 करोड़ था। जी नहीं, अभी लास्ट 2 साल से टर्नओवर नहीं हुआ फैक्ट्रीज लोग का, क्योंकि सीसीआई का चला है। तो टर्नओवर नहीं होने से कुछ आपको बैंक फैसिलिटी वगैरह कट हो गया रहेगा जिनर का, तो फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आएगा? नहीं, वैसा नहीं है। वो हम तो उसमें लास्ट रिन्यूअल टाइम में सीसीआई का जो है बोल के लिखा के दे दिया। वो लोग भी मान लिया लास्ट। और सीसीआई का हुआ, कोविड का हुआ ना, उसके लिए कोविड का लोन्स भी बढ़ा है ना जी। उसके लिए फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं रहता। फाइनेंस का प्रॉब्लम आया तो भी कैश सिस्टम में बेचने का रहता। जी थैंक यू रेड्डी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाउ आई इनवाइट श्री जे तुलसीधरन जी, प्रेसिडेंट इंडियन कॉटन फेडरेशन फ्रॉम कोयम्बटूर। Good morning, Mr. Ganatra. Good morning, sir. Good morning. Sir, my question to you is in Tamil Nadu, cotton is improving every year. The lowest crop was few years back 3 to 4 lakh bales, and now this year the Tamil Nadu crop has crossed the 7 lakh bales plus. So how will be the sowing in the Tamil Nadu in the coming year, and how the crop and quality will be in the Tamil Nadu, sir? Tamil Nadu, as you said, the crop is increasing every year because of the very remunerative prices the farmer is getting. And secondly, Tamil Nadu has removed the 1% market committee cess on cotton. So the ginners are also, and mills are also able to pay better price. Our cotton acreage is about 1.95 lakh hectares, and we grow cotton in the Kharif as well as summer crop. Summer crop is also a very big crop in Tamil Nadu, and because the crop comes in the month of June, July, and the farmer gets very good rate, summer always the crop is always steady. This year we have very good water sources, we had very good rains, and the crop is, standing crop is also very good, and harvesting will start very soon. And we expect summer crop also to be very robust. And as you said, we will cross 10 lakh bales, I think, this year. Okay, sir. And regarding the yield increase, which you talked in your inaugural speech. Yes, sir. Sir, our yield has been stagnant or slightly falling in last few years. Yes, sir. And in next 6 to 7 years, if yield doesn't improve or supply doesn't improve,
India will become a cotton deficient country from a cotton surplus country. Any research in this area will take a very long time, and I think we should all represent the government to Yes. have a So, stakeholders meeting to see how it could be improved. And earlier, a similar meeting was held by the textile commissioner, but the report is lying pending. I think this meeting should have one agenda, that is to improve the yield per acre. Definitely there is very good opportunity and we should go forward with that. Wish everybody a happy Cotton Day. Thank you, Mr. Jantra. Thank you, sir. Thank you very much. Now I invite Sri Rama Rao, Secretary of Andhra Pradesh Cotton Association. Good morning to all of you, sir. Ji, Namaste, Rama Rao ji. On behalf of Epic Cotton Association, we are our greetings are my greetings Thank to you. all of on the occasion of the World Cotton Day. Yes, thank you. Rama Rao ji, my question to you now, we have seen Andhra quality, Adoni, and that area cotton arrivals are started 3,000 to 4,000 bale, and we have seen this year the quality is coming excellent, 30 to 32 mm cotton is coming, and RD are seen 80 plus RD, which is very good. So how will be quality and quantity this year in Andhra? The quality is very fantastic, sir. For us, even rains are Adwan area and Adwani and nearby surrounds area, Kurnool and area are very good quality this year will come. And maybe around whatever you say, it is correct. 31 plus only is cotton is coming in at present. On RD also will be 79 to 81, it is coming. Strength also it will be more than 25 plus GTEX it is coming. And moreover, we have to say sorry to, but because we could not get more cotton this year showing due to the pink bone war, even the Kurnool district only it is the plastic which is coming more than 3.5 lakh hectares they are printing. In Andhra and Krishna, this only we are around 2 lakh hectares only we are there. Showing is over. Even not much affected in the Guntur district also for this rains. Kurnool also is very, Kurnool district also very good. So according to my opinion, last year we got 14.5 lakhs around 5 lakh bales as we got. And this year we may get, because maybe people are telling at 85 to 9 lakh bales, but according to my opinion, this year the summer crop we achieved more than 1.5 to 1.7 lakh bales we came. So next year also the other district of the Guntur, this Prakasham and Nellore, some parts of Nellore and some parts of Kadapa is extending the cotton growing. So I think we may get, other than this 9 lakh bales, we may get 2 lakh bales extra than the present crop. So altogether we may accept 10 to 11 minimum 10 lakh bales and up to 11 lakh it will come. But for next year we have got we are extending our programs to the farmers to supply for manures and to measurements we are taking to reduce the pink bollworm, and seed also we are providing on behalf of some agencies for that. For that we are planning with the government of Andhra Pradesh for the agriculture department. I think next year we may achieve more previous year like that 15 to 16 lakh bale, 15 to 16 lakh bale. For that we are on Warput, we are working with all our textile association and cotton association both are together working. Even we are ready to spend more than 50 lakhs to extend this to improve the cotton crop also, because due to this marketing Rama ji, my one more question. If Telangana crop is bigger and if CCI is not active and if factories cannot buy the entire crop, do you think the kapas will come from Telangana to Andhra? Because you have many spinning mills, so do you think Telangana cotton will come to Andhra? Kapas will come to Andhra? Last year some 5% has come, sir, but this year we cannot expect because there are 380 mills, spinning mills in Telangana. Correct. We got only 130, 140 spinning mills only. But those all Telangana factories has been put for CCI spinning work. Not, I don't think everybody will run factories.
Maybe some people may run, but surroundings of Andhra border only may come, sir. But don't, Okay. because at this rate, so nobody will come, nobody will send the kapas. Thank you very much, Thank you, sir. Ramarao ji. Very kind of you. Thank you all. We have 19 associate member. You are the most permanent, and you are attending each and every our board meeting. Thank you very much for Thank that, you, sir. Very Ramarao. kind of, very kind Please of. keep doing that. Okay, thank you, sir. Yeah. Now I invite Sri Arun Agarwal ji, Secretary of Orissa Cotton Association. अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। वर्ल्ड कॉटन डे की बहुत बहुत शुभकामना। आज नववर्ष शुरू हो रहा है, सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जी जी नमस्ते जी सर। अग्रवाल जी, अरुण भाई आपसे मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर आपके यहाँ सोइंग कम था और इस साल कैसा सोइंग है और इस साल क्वालिटी कैसा आएगा आपका उड़ीसा में? जी, लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर 1,67,000 के आसपास सोइंग हुआ था साहब। इस साल हमारे यहाँ 1,93,000 हेक्टेयर का सोइंग हुआ है साहब जी। तो सोइंग में करीब 15% के यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुई है जी। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा थी इस बार। पहले जो इनिशियल सोइंग के टाइम पे बारिश की कमी के कारण कई एरिया में दोबारा और तिबारा भी सोइंग हुई है जी। लेकिन बाद में और कोई ऐसा लॉस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अभी हाल ही में जो बारिश हुई लास्ट 10 डेज 15 डेज के अंदर थोड़ा बहुत रिपोर्ट वहां से आ रही है कि कोई कोई एरिया में थोड़ा बॉल या फ्लावर गिरे हैं बोल के। इसका एग्जैक्ट अंदाजा अभी मिलना मुश्किल है साहब, 10 दिन लगेगा उसके लिए। बाकी ओवरऑल क्रॉप जो है पूरा स्टेट में बहुत बढ़िया है साहब। और क्वालिटी कैसा आएगा? जो 30, 31, 32 mm आता है आपके यहाँ वैसा ही आएगा इस साल? लास्ट ईयर 30 mm ही मतलब हाईएस्ट था हमारे यहाँ पर और उम्मीद करते हैं सब वही लेवल का मतलब क्रॉप आया क्योंकि पानी बहुत अच्छा मिला है हमको, तो क्रॉप डेफिनेटली क्रॉप की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगी सर। थैंक यू अरुण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको यहाँ मौका दिया सर। नमस्ते। थैंक यू। So after talking to all 10 state president and the secretary, overall summary we can arrive is there was a loss for the around 5 to 10%. There was loss for the September end rains, but now last 4 or 5 days sunshine has improved the condition of the crop, and most of the state are expecting that due to higher rate of the kapas, the further cotton will increase this year and farmers may keep the plants for longer time and take more cotton of third and fourth picking. So overall, we feel that crop condition is not the bad as it was been hyped by the media and the few peoples. So we can definitely expect minimum 350 to 360 lakh bales crop this year. And regarding CCI purchase, few people thinks that when the December peak arrivals will be there, when the arrivals are coming 3 to 3.5 lakh bales, CCI may active for 15 days. So that is what overall summary of this all meeting is done. So thank you very much. I hope this presentation of all 10 states will give the maximum idea of the coming season to our trade people. So our aim was to organize a workshop where we get beginning of the season, we get the idea of the crop condition and how will be the season coming up season. So thank you very much. Over to Anchal. Thank you, Mr. Ganatra, and all the representatives of cotton associations for this meaningful session. I believe I can take notes and myself do a PhD in cotton if I could.